Last time we talked about polyesters, that how polyesters are categorized into different types of the polymers and how they are used, what are their different types, and based upon types, what are their uses. Then we talked about that synthetic groups, which are too many groups, as you may have observed these. So we talked about the uses of polyesters. Then we also started polyamides. Polyamides हम पढ़ चुके थे. इसमें भी there are repeating units of amide bonds. For example, the protein, wool, silk, ये सारे polyamides हैं. इससे हम ज़्यादातर किचन कार्पेट्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में बर्तन, स्पोर्ट्स वेयर, हर चीज़ तकरीबन इससे बनती है. ठीक है. और इसकी क्लासिफिकेशन है, फिर एलिफेटिक है, पॉलीथेलामाइड्स, एरोमेटिक है. ठीक है, जिनको हम एरामाइड्स कहते हैं. Today we'll be taking another type of the polymer that is called polyurethane. Polyurethane or PU or PUR. This is a polymer composed of organic units joined by carbamate urethane links. जहाँ पे कार्बामेट के लिंकेजेस हों जिस पॉलीमर में, तो ये पॉलीयूरेथेन कैटेगरी में आते हैं. While most polyurethanes are thermosetting polymers, uh, they are thermosetting polymers that do not melt when heated. Thermoplastic polyurethanes are also available. पॉलीयूरेथेन ज़्यादातर आपको थर्मोसेटिंग मिलेंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे थर्मोसेटिंग हो. इसमें थर्मोप्लास्टिक भी होते हैं. ठीक है. Polyurethanes are used in the manufacture of high resilience foam setting, rigid foam insulation panels, microcellular foam seals, and gaskets, spray foams, durable elastomeric wheels and tires, such as rollers, coaster, escalator, shopping cart, elevator, and skateboard wheels, automotive suspension bushings, electrical potting compounds, high performance adhesives, surface coatings and sealants. ठीक है. Synthetic fibers, carpet underlay, hard plastic parts. अगर इसकी मतलब आप देख लें तो ये ज्यादातर आपको फोम टाइप की मटेरियल्स बना के देते हैं, जो फोम नहीं होते हैं, जो घरों में यूज होते हैं. ठीक है. लाइक कारपेट्स के नीचे जो आप फोम यूज करते हैं, जो इसके नीचे डालते हैं. इसके अलावा गैस्केट्स में, सील्स में, रेफ्रिजरेशन पर्पजेस के लिए जो हम फोम यूज करते हैं. ठीक है. एडहेसिव्स में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, ये मतलब ये पॉलीयूरेथेन्स यूज होते हैं. इसके अलावा ये हार्ड मटेरियल में भी पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक यूज के लिए फिर इनका बहुत सारा यूज है. और व्हील्स भी इनसे बनाए जाते हैं. सो polyurethane, they are like you may see in this reaction. This is one type of the organic reactant, and this is alcohol. So when these two reacts together, they will produce polyurethane. ठीक है. ये polyurethane का monomer unit है, monomeric unit है. Since polyurethane contain two types of monomers which polymerize one after the other, they are classed as alternating copolymers. ठीक है. ये alternating copolymers इनको कहते हैं. ये जो moiety है इसको isocyanates कहते हैं. ठीक है. Isocyanates and polyols used to make polyurethane contain on average two or more functional groups as per molecules. अगर इसमें आप देखें तो इसमें दो या दो से ज्यादा functional groups होती हैं. Like for example, as you may see,
NH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें CO फंक्शनल ग्रुप है, फिर COO फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फिर simple CO functional group है. So there are more than two functional groups present in polyurethanes. Now, so this was all about the uh, mechanisms जो हम पढ़ रहे थे. अगर आपको याद हो, ये हमने mechanism शुरू किए थे. हमारे पास दो किस्म के मैकेनिज्म थे. एक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में था, एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन था, एक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन था. तो हमने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शुरू किया था, जिसमें हमने कहा था कि इसमें बाइफंक्शनल और मल्टीफंक्शनल मोनोमर्स रिएक्ट टू फॉर्म फर्स्ट डाइमर, देन ट्राइमर्स, देन ओलिगोमर्स. ठीक है, ये हमने स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन शुरू किया था. तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े हैं. पॉलीएस्टर्स हैं, फिर पॉलीअमाइड्स हैं, फिर पॉलीयूरेथेन्स हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ लिए. नाउ द सेकंड mechanism of polymerization is chain growth polymerization. Chain growth polymerization or chain growth polymerization is a polymerization technique where unsaturated monomer molecule add onto the active site and a growing polymer chain one at a time. अब chain growth polymerization जो है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें मोनोमर्स जो हैं ये एक पॉलीमेरिक चेन का हिस्सा बनते हैं. एक मोनोमर एक चेन का हिस्सा एक टाइम में बनता है, फिर दूसरा, फिर इस तरीके से चेन जो है ये बढ़ता जाता है. ठीक है. सो नाउ इन 1953 Paul Flory first classified polymerization as step growth polymerization and chain growth polymerization. IUPAC recommend to further simplify chain growth polymerization to chain polymerization. ठीक है, IUPAC का रिकमेंडेशन ये है कि इसको आप chain polymerization भी कह सकते हैं. It is a kind of polymerization where an active center free radical or ion is formed and a plurality of monomers can be polymerized together in a short period of time to form a macromolecule having a large molecular weight. इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टिव साइट्स होता है, फिर उसके साथ ये बाकी जो है रिएक्शंस करते हैं और चेन लिंकिंग होती रहती है. अभी इसकी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे. सो यू विल सी दैट हाउ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन proceeds. In addition to the regenerated active sites of each monomer unit, polymer growth will only occur at one or possibly more endpoints. ठीक है, इसमें सिर्फ एक साइड पे रिएक्शन होता है, बाकी किसी साइड पे रिएक्शन नहीं होता. वो साइड को हम एक्टिव साइड कहते हैं. Many common polymers can be obtained by chain growth polymerization, such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polymethyl methacrylate, polyacryl nitride, polyvinyl acetate. ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसकी मतलब इस मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको सिंथेसाइज करते हैं. अब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है, दिस इज ऑब्टेन्ड थ्रू सर्टेन स्टेप्स. उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? चेन ट्रांसफर एंड चेन टर्मिनेशन डू नॉट ऑलवेज हैपन इन अ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट स्टेप, चेन इनिशिएशन. पहला स्टेप इसका होता है कि चेन बनना कैसे है. ठीक है, chain initiation is the process of initially generating a chain carrier. Chain carriers are some intermediates such as radicals and ions in chain propagation process. सबसे पहला काम होता है जो जिसको हम ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज चेन इनिशिएशन. ठीक है, और चेन इनिशिएशन में फिर क्या होता है? चेन इनिशिएशन में चेन कैरियर्स बनते हैं. चेन कैरियर्स क्या चीज हैं? चेन कैरियर्स आर रेडिकल्स और आयंस which are taking part in reactions. ठीक है,
According to different phases of energy dissipation, it can be divided into thermal initiation, high energy initiation, and chemical initiation. अब चेन इनिशिएशन जो है ये हम डिफरेंट तरीकों से हासिल कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज, या तो आप इसको हीट के थ्रू हासिल करते हैं जिसको हम थर्मल इनिशिएशन कहते हैं, या हाँ एनर्जी इनिशिएशन, कोई इसको मोशन देते हैं या किसी तरीके से इसको किसी और प्रोसेस से हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हाई एनर्जी इनिशिएशन. या हम किसी केमिकल रिएक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं, किसी मॉइटी को जनरेट करते हैं, फिर वो जो रिएक्शन का हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है. Thermal initiation is a process that is obtained energy and dissociated to homolytic cleavage to form active center by molecular thermal motion. High energy initiation refers to the generation of chain carriers by radiation. ठीक है. Radiation मतलब रेंज के यूज होते हैं. ठीक है. केमिकल फोटोकेमिकल इनिशिएशन इसमें आते हैं. केमिकल इनिशिएशन इज ड्यू टू केमिकल इनिशिएटर्स. ठीक है. चेन प्रोपिगेशन, सेकंड स्टेप जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का होता है वो चेन प्रोपिगेशन होता है. IUPAC define chain propagation as an active center on the growing polymer molecule which aids one monomer molecule to form a new polymer molecule which is one repeat unit longer with a new active center. चेन प्रोपिगेशन क्या होता है कि अब आपके पास एक मतलब एक एक्टिव सेंटर बन गया. ठीक है. तो ये दो एक्टिव सेंटर्स जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो फिर एक तीसरा एक्टिव सेंटर भी बन जाता है. तो फिर वो तीसरा एक्टिव सेंटर फिर चौथे मोनोमर के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है. एंड देन दिस फोर्थ एक्टिव सेंटर देन रिएक्ट्स विद फिफ्थ मोनोमर. इसी तरीके से मतलब ये चेन जो है ये एक्सटेंड होता जाता है, लॉन्गर होता जाता है. सो दिस प्रोसेस इन विच a new monomer adds to the already polymeric unit. This is called chain propagation. मतलब chain lengthening जिसमें होती है. This process is called chain propagation. इस step में chain propagation में क्या होता है? The first and very important thing is एक आपके पास एक मोनोमर जो है वो आता है और वो रिएक्शन का हिस्सा बनता जाता है, पॉलीमर का हिस्सा बनता जाता है. तो इसमें द फर्स्ट थिंग इज, एक तो चेन लिंकिंग होती है, दूसरी बात इसमें एक्टिव सेंटर्स बनते जाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप is chain transfer. The polymerization process does not have to undergo chain transfer. Chain transfer means that in chain polymerization, the active center of the polymer A takes an atom from B molecule and terminates. चेन ट्रांसफर वैसे तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में नहीं होता, लेकिन ये जनरली चेन ग्रोथ का एक हिस्सा है. मतलब ये पॉलीमराइजेशन का हिस्सा नहीं है लेकिन इस मैकेनिज्म का हिस्सा है. सो द बी मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ न्यू एक्टिव सेंटर. ठीक है. इसमें क्या होता है कि चेन पॉलीमराइजेशन में, चेन ट्रांसफर में एक मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब एक पॉलीमेरिक यूनिट है, उसका एक एक्टिव सेंटर है. तो वो किसी दूसरे पॉलीमर के एक्टिव सेंटर या मोनोमर के एक्टिव सेंटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे मॉलिक्यूल के एक एक्टिव सेंटर को क्रिएट करके उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और उसके साथ रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. तो ये जो फिर बी मॉलिक्यूल जो है उस पे एक्टिव सेंटर होता है और फिर वो आगे फिर रिएक्शन करता है. सो दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ये कुछ और प्रोसेस है. लेकिन ये चेन ट्रांसफर जो है ये वैसे जनरल उसके लिए आप ले सकते हैं, ये चेन ग्रोथ का पॉलीमराइजेशन का हिस्सा नहीं है. सो वी शुड स्किप दिस. ऐसे आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये एक स्टेप होता है, इसमें इसमें बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. मतलब थ्रू दिस स्टेप यू कैन हैव सम बाय प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन. Chain termination refers to in chain polymerization process, active center disappears, resulting in the termination of chain propagation.
इसमें क्या होता है, एक इसमें चेन टर्मिनेशन में एक्टिव सेंटर्स बनना बंद हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो जो प्रोपिगेशन स्टेप हो रहा है ना, तो प्रोपिगेशन में ये होता है कि एक मोनोमर ऐड होता जाता है पॉलीमेरिक यूनिट को, लेकिन इसमें मोनोमर ऐड हो जाता है और आखिर में फिर एक्टिव सेंटर नहीं बनता, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड chain termination, ठीक है। During the chain transfer process, the active point only shifts to another molecule but does not disappear, ठीक है। मतलब इसमें चेन टर्मिनेशन हम केमिकल से भी हासिल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये खुद हो जाए, कभी कभार खुद भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चेन टर्मिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, वी आर एडिंग सम स्पीशीज। क्लासेस ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है ये भी फिर डिफरेंट टाइप्स का है। मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो तो जनरल स्टेप्स हैं कि इसमें पहले इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपिगेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है, ठीक है, जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में होता है। बाकी तो इसमें और भी प्रोसेसेस हैं, चेन ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन वो पॉलीमराइजेशन का हिस्सा नहीं है। Now, chain growth polymerization के different classes हैं। The first one is radical polymerization. ये अब mechanistic wise है। Radical polymerization में क्या होता है? In which the kinetic chain carriers are radicals. इसमें जो मतलब जो रिएक्शन का हिस्सा होते हैं, जो एक्टिव moieties होते हैं, they are actually radicals. Radicals क्या होते हैं? They are having one electron species, ठीक है, मतलब इन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने लिए एक और इलेक्ट्रॉन की सर्च में होता है ताकि वो पेयर बन जाए, तो बॉन्ड बन जाता है फिर आगे। So these radicals are the species which are taking part in the polymerization. Usually, the growing chain it bears an unpaired electron. Unpaired electron. Free radicals can be initiated by many methods. अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पे होते हैं, इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है, जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनको हम डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज हीटिंग। यू कैन प्रिपेयर फ्री रेडिकल्स बाय हीटिंग, you can prepare it by redox reactions, you can also prepare them by ultraviolet radiation या high energy radiation या electrolysis या इसके अलावा सोनिकेशन एंड प्लाज्मा। ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम रेडिकल्स बनाते हैं। Free radical polymerization is very important in polymer chemistry. It is one of the most developed methods in chain growth polymerization. Currently, most polymers in our daily life are synthesized by free radical polymerization, such as polyethylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polymethyl methacrylate, polyacrylonitrile, polyvinyl acetate, styrene butadiene, rubber, nitrile rubber, neoprene, etc. ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम पॉलीमर्स हैं जिनको हम रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनाते हैं। सर ये सोनिकेशन क्या चीज है? सोनिकेशन सोनिकेशन में ये तो खैर सोनिकेटर से हम करते हैं। सोनिकेटर्स ये ऐसे रेस प्रोड्यूस करते हैं ना इसमें, कि ये उन रेस के थ्रू जो है, जैसे माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स तो खैर सोनिकेटर नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव्स एक एग्जांपल है। तो आप माइक्रोवेव को देख ले, तो माइक्रोवेव में एक्चुअली रेज ही होती हैं, इसमें तो कोई हीटर नहीं लगा होता, लेकिन वो माइक्रो रेज जो हैं वो सर ये काइनेटिक चेन थ्योरी जरा समझाइए सर। ये माइक्रोवेव के रेज जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन हीटिंग द एनी टाइप ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो सोनिकेशन भी इसी तरीके से हम रेज डेवलप करते हैं, और ये जनरली यूज होते हैं सोनिकेटिक में, और इसके थ्रू हम ज़्यादातर
वाइब्रेशंस निकालते हैं उसमें, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं इसमें। सोनिकेटर में आप जिस चीज़ को रखते हैं तो उससे इसमें ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, ये आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा इस पे नोटिस लिया गया है आप लोगों ने। ये जो अभी आज भी मुझे एक टीचर ने उसके बारे में बात कही है, सो डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। जी सर काइनेटिक चेन थ्योरी जरा समझाइए सर। जी, काइनेटिक चेंज कैरियर्स। काइनेटिक चेन कैरियर्स का मतलब होता है कि एक्टिव जो एक्टिव पार्ट होता है, जो एक्टिव मॉइटीज होती हैं, वो आगे जाके रिएक्शन का हिस्सा बनती हैं, तो उसको हम काइनेटिक चेन कैरियर्स कहते हैं। यस सर। ठीक है, ओके सर। फिर नेक्स्ट है आयनिक पॉलीमराइजेशन। बेस्ड ऑन IUPAC, ionic polymerization is a chain polymerization in which the kinetic chain carriers or ions are ion pairs। ठीक है, जिसमें जो एक्टिव पार्ट होता है वो आइंस होती है, मतलब उसमें फ्री रेडिकल्स बन रहे थे ना, इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं है बल्कि आइंस बन रहे हैं। So it can be further divided into anionic polymerization and cationic polymerization। अब आइंस भी दो किस्म के बनते हैं ना, या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। तो इसकी बेसिस पे हमने क्या की है, या तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन होगा या कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगा। Ionic polymerization is widely used in our daily life. A lot of common polymers are generated by ionic polymerization, such as butyl rubber, polyisobutylene, polyphenylene, polyoxymethylene, polysiloxane, polyethylene oxide, high density polyethylene, isotactic polypropylene, uh, butadiene rubber। ये सारे जो हैं ये आयनिक पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। लिविंग anionic polymerization was developed since the 1950s। The chain will remain active indefinitely unless the reaction is transferred or terminated deliberately, which realizes the control of molar weight and PDI। PDI जो है इसको हम पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स ये असल में डिफाइन करता है कि आपकी पॉलीमर में कितने चेन्स किस लेंथ के हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर पीडीआई इंडेक्स जो है वो इसकी वैल्यू 1 आती है ना, तो मैक्सिमम 1 होती है, मतलब एग्जैक्टली 1 अगर आ जाए तो आपका पॉलीमर जो है ये इन सब की चेन की लेंथ जो है वो एक जैसी है। एफ द पीडीआई वैल्यू इज 0.5, तो इसका मतलब है कि आपके पॉलीमर की चेन्स हाफ जो हैं वो एक किस्म के लेंथ्स के हैं, और हाफ जो हैं ये दूसरे किस्म के लेंथ्स के हैं। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू 0.5 से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे पॉलीमर्स बनते हैं। तो पीडीआई वैल्यू जो है ये हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीमर्स के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन ये जो है ये हम बना, मतलब ये पॉलीमर्स हम बना देते हैं until and unless they are terminated by some reagent। ठीक है, तो इनके साथ कुछ रिएक्शंस होते हैं तब ये स्टॉप होते हैं, अदरवाइज आयनिक पॉलीमराइजेशन जो है ये हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ another type of the polymerization is coordination polymerization। This is a polymerization or chain growth polymerization that involves the preliminary coordination of a monomer molecule with a chain carrier। इसमें नाम से ही आपको लग रहा है, एक्चुअली ये आप देख रहे हैं कि एक में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, एक में आयनिक बॉन्ड्स के तरीके से बन रहे हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स से के थ्रू से बन रहे हैं, तो ये हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं। इसमें चेन एक्सटेंशन जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बनती है। सिंपल, the monomer is firstly coordinated with the transition metal active center, and then the activated monomer is inserted into the
ट्रांजिशन मेटल कार्बन बॉन्ड फॉर चेन ग्रोथ, मतलब इसमें मेटल ही इन्वॉल्व होता है जो लिगेंड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और पॉलीमेरिक चेन बनते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं आजकल। बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जो है ये रिपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। In some cases, coordination polymerization is also called insertion polymerization or complexity polymerization. इसके ये नाम भी हैं, ठीक है, या इसको insertion polymerization कहते हैं या complexity. Advanced coordination polymerization can control the tacticity, molecular weight, and PDI of the polymer effectively. In addition, the racemic mixture of the chiral metallocene can be separated into its enantiomer. The oligomerization reaction produces an optically active branched olefin using an optically active catalyst. मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होती है ये अक्सर कायरल होते हैं, ठीक है, कायरलिटी इनमें होती है, तो इनमें ज़्यादातर enantiomers की चांसेस भी होती हैं। सो यू कैन क्लासिफाई देम बेस्ड अपॉन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। Next type of the polymerization is living polymerization. Living polymerization was इसकी जी एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल सर क्या है? कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स वैसे कॉमन लाइफ के अभी तक नहीं है, लेकिन जो जनरल हैं ये केमिकल वाइज हैं कि वो जो केमिस्ट्री उसमें होती है। इसमें अक्सर आजकल जो बनाए जाते हैं उनको हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है, वो भी हमारी कोर्स का हिस्सा है। आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। कंडक्टिंग पॉलीमर्स होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आजकल वायर्स की जगह पॉलीमर्स को यूज करके कंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, जो वायर्स की जगह मतलब कॉपर या आयरन की जगह वो उसको यूज किया जाएगा फॉर कंडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स आजकल बहुत बड़ी एक फील्ड है, तो उसमें ये जो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन होती है ज़्यादातर। लिविंग सर पॉलीमराइजेशन जी एनायनिक पॉलीमराइजेशन में एक एनाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक कर सकते हैं। एनाइनिक पॉलीमराइजेशन में एनाइंस बनते हैं, मतलब जो एनाइंस बनते हैं फिर वो आके दूसरा मोनोमेरिक यूनिट के साथ रिएक्शन करता है, फिर इस तरीके से फिर आयन बनते हैं, फिर उस तरीके से। तो इसमें एनाइंस बनते हैं, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कैटाइंस बनते हैं। ये सर एनायनिक पॉलीमराइजेशन में अनसेचुरेटेड जो मोनोमर है वो भी पाई बॉन्ड वगैरह पे शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनेट सेंटर है तो एनाइन उस पे अटैक कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है, वो आप यस एक सर। और तरीके से बात कर रहे हैं। हम पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग है, और आप जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर यस सर। रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लिविंग पॉलीमराइजेशन. Living polymerization was first introduced by Michael Schwartz in 1956 based on definition from IUPAC. It is a chain polymerization from which chain transfer and chain termination are absent. इसमें chain transfer और chain termination नहीं होती, simple सी बात। As there is no chain transfer and chain termination, the monomer in the system is consumed and the polymerization is stopped when the polymer chain remains active. ठीक है? Once the new monomer is added, the polymerization can proceed. Due to the low PDI and predictable molecular weight, living polymerization is at the forefront of polymer research. It could be further divided into living free radical polymerization, living ionic polymerization, and living ring opening metathesis polymerization. इसकी फिर फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें चेन ट्रांसफर और चेन टर्मिनेशन नहीं होती, ये दो स्टेप्स नहीं होते। Ring opening polymerization. Ring opening polymerization, this is very advanced type of the polymerization. Nowadays it is used
इसमें सिंपल सा काम होता है, इसमें कोई भी साइक्लिक प्रोडक्ट होता रिएक्टेंट होता है, वो जो है उस जो साइकिल है वो उसको हम ओपन कर देते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है, और वो फिर पॉलीमर का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है रिंग ओपनिंग polymerization is a polymerization in which a cyclic monomer yields a monomeric unit which is acyclic or contain fewer cycles than the monomer. Generally, the ring opening polymerization is carried out under mild conditions when the byproduct is less than the polycondensation reaction and the high molecular weight polymer is easily obtained. मतलब इसमें आप एक साइक्लिक कंपाउंड होता है ना, लाइक 5 मेंबर्ड साइकिल है या 6 है या 7 मेंबर्ड है, तो इजीली आपने अगर उसका रिंग ओपन कर दी है तो ये जो है 5 मेंबर्ड है तो इसमें 5 कार्बन है, जाहिर सी बात है। तो ये मोनोमर जब एक मोनोमर में 5 मेंबर्ड कार्बन है, फिर दूसरे मोनोमर में 5 मेंबर्ड कार्बन है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन 10 कार्बन का एक पॉलीमर बन गया आपके पास। तो फिर इसके बाद एक और मोनोमर अगर इसमें ऐड हो गई है तो ये 15, फिर एक और मोनोमर 20 कार्बन, 4 मोनोमर्स मिले हैं और 20 कार्बन का पॉलीमर बन गया। तो ये कहते हैं कि रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में हम आसानी से बहुत बड़े मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से बनते हैं इसके पॉलीमर्स। कॉमन रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट्स इंक्लूड पॉलीप्रोपाइलीन ऑक्साइड, polytetrahydrofuran, polyepichlorohydrin, polyoxymethylene, polycaprolactam, एंड पॉलीसाइलक्सेन्स। ये nowadays ये जो स्टिचिंग मटेरियल हम नहीं यूज़ करते, जो आजकल वायर यूज़ होते हैं, जो स्टिचेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो फिर बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं, दे आर एक्चुअली produced through ring opening polymerization. Next is reversible deactivation polymerization. Sir, sir, जी, sir, the byproduct volume sir list sir the ring opening polymerization क्योंकि इसमें product एक volume list sir. मतलब इसमें आपके पास रिएक्टेंट जो है उसमें सिर्फ एक ही काम होता है, उसका रिंग ओपन करना है, सिंपल सी बात है, और वो फिर रिंग ओपन होके वो एक मोनोमर के तौर पे काम करता है, तो इसलिए इसमें कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, अनलेस सिर्फ इसमें ये होता है कि पॉली पीडीआई वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बाकी इसमें कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल डीएक्टिवेशन Okay. पॉलीमराइजेशन. The reversible deactivation polymerization is a kind of chain polymerization which is propagated by chain carriers that are deactivated reversibly, bringing them into active dormant equilibria, of which there might be more than one. An example of reversible deactivation polymerization is group transfer polymerization. इसमें सिंपल सा काम होता है कि इसमें इक्विलिब्रियम का स्टेट डेवलप होता है, कि मतलब एक चेन बन जाता है एक तरीके से, फिर वो इक्विलिब्रियम जो है वो या तो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, या वो स्टॉप हो जाता है, फिर बैक की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो ये इसको हम रिवर्सिबल डीएक्टिवेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। टाइम जो है ये तकरीबन ख़त्म होने वाला है, सो आई विल स्टॉप।